جب پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا جائے گا کہ جناب اب ایم کیو ایم جو ہے وہ ہماری اتحادی ہے اور ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ، ایک بہت بڑی اور گہری سازش رچائی گئی، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پہ شور مچائے گی۔ اس سازش کے تحت ایم کیو ایم کے لوگوں کو فعال کیا گیا اور فعال کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے ایک ایجنڈے کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے یا تبدیلیاں لے۔ یہ آخر اتنی گہری سازش کون کر رہا ہے اور اس سازش کے پیچھے کون ہے؟ ایک بہت بڑے صحافی کے انکشافات ہیں یا اس کے دل کی خواہش، یا پھر وہ اس طریقے سے بتا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا کھیل کھیلا جانے والا ہے اور جس کا گراؤنڈ ہوگا سندھ، جس کی جگہ ہوگی کراچی اور جس میں ہوگا خون خرابہ۔ الطاف حسین کا دور نہیں رہا، الطاف حسین کا دور نہیں آئے گا، یہ ایک بڑے صحافی کا کال ہے یا پھر اس کال کا نتیجہ کچھ اور ہے؟ آخر اس بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہی بانی ایم کے ایم والا دور واپس آئے گا، ایک دم وہ مولانا کہ جو بہت زیادہ چہیتا سمجھا جا رہا ہے، آج صبح 9:30 بجے کے قریب کیوں پاکستان کے تمام سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ٹرینڈ چل رہا تھا؟ آخر مولانا فضل الرحمان کے خلاف کیا وجہ ہے کہ پوری کی پوری یا تو سیاسی جماعتیں متحرک ہے یا کچھ ایسے نادیدہ ہاتھ کہ جو اس وقت مولانا اور حکومت کے درمیان خلیج کو بڑھانا چاہتے ہیں، یا پھر اصل کھیل کیا ہونے والا ہے؟ یکدم عدالت کے اندر تحریک لبیک کے کارکنان داخل ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں اس جج صاحبہ کا کہ جسے آج کے دن یعنی کہ 27 جولائی کو اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ حافظ سعد رضوی کہاں پر ہے، لیکن عین اسی وقت وہ جج صاحبہ کہاں پر غائب ہو جاتی ہے یا پھر لاپتہ ہو جاتی ہے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایک پورا کھیل آپ کو سمجھانے والا ہوں جو آج لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جو بالکل ایم کیو ایم سے نکلے تو کوڑے میں چلے گئے اور پھر اسے کوڑے کو دوبارہ ایم کیو ایم میں شامل کر لیا گیا؟ آخر ایم کیو ایم کے کنوینر یا پھر ایم کیو ایم کے چیئرمین یا پھر ایم کیو ایم کے رہنما، آخر یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ کون شخص ہے کہ جس کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے؟ وہ تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دے گا۔ آج کے پروگرام میں آپ کو دینے والا ہوں ایک بہت گہری سازش اور ایک بہت ہی گہرے معاملات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور ایک ایسی سازشی کھیل کی طرف آپ کو لے کے جانے والا ہوں جس کا گراؤنڈ اس بار ہوگا کراچی، جس کی زمین ہوگی سندھ کی، اور اس سندھ کی زمین پر کراچی کے گراؤنڈ پر کیا وفاق کے اندر بہت بڑی تبدیلیوں کے اشارے دیے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے آئین کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے اشاروں کے لیے کیا اس بار سندھ کی زمین کو استعمال کیا جانے والا ہے؟ آخر اس کھیل کے پیچھے کون ہے اور پس پردہ بڑے معروف صحافیوں نے اس کا کیا ذکر کیا ہے؟ تو یہ تمام کی تمام تحقیقاتی رپورٹ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں، لیکن ان سب کے لیے ضروری عنصر یہ ہے کہ ڈریے نہیں، جھجکے نہیں، گھبرائیے گا نہیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ ہفتے کے روز پاکستان کے بڑے ٹی وی چینلز میں سے شمار ہونے والے ایک بڑے ٹی وی چینل کے اندر دو بڑے معروف اینکر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پریشر اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے یا تبدیلیاں لے۔ ایک وہ معروف اینکر تھا کہ جو کہ ہمیشہ سے اس بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ سب سے زیادہ معلومات رکھتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس شخص کی جو بھی سازشی نظریات اس نے پیش کیے وہ ہمیشہ فلاپ ہوئے، اور میں کسی اور شخص کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں آپ کو حامد میر کے متعلق بتا رہا ہوں۔ آپ نے حامد میر کا نام سنا ہوگا، لیکن حامد میر ہمیشہ سے آپ کو ٹی وی چینلز پر اور اپنے تبصروں میں اس طرح سے گم سم سی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جیسے وہ بہت بڑے سازشی نظریے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہفتے کے روز دو پریس کانفرنس کراچی کے اندر ہوئی، ایک ہوئی مصطفیٰ کمال کی جنہوں نے 18ویں ترمیم پر سوال
सवाल उठाते हुए और फिर वफाक पर, वफाकी हुकूमत पर, और फिर कई सवालात उठाए। और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पर बहादुराबाद के अंदर हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर और फारूक सत्तार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की गई थी और एमक्यूएम का शुरू से ये मौकिफ है कि हम 18वीं तरमीम के तो हिमायती रहे, लेकिन 18वीं तरमीम में मजीद तरामीम की जरूरत है कि इख्तियारात को सूबाई हुकूमत से निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। इस वक्त सिंध की सियासत का, बल्कि अगर पूरे पाकिस्तान की सियासत का अगर आप महवर देखिए और खुसूसी तौर पे कराची की सियासत का महवर देखिए, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालफत में जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18 साल कारकर्दगी ही उसकी सबसे बड़ी निशानी है और उसमें से करप्शन से उठने वाले सवालात, कराची का एक बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कराची में आए दिन के मसाइल उसकी सबसे बड़ी वजह है। इसलिए सियासत का मैदान, चाहे जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, JUI हो, तहरीक लब्बैक हो, ये तमाम की तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपना एक वजन देती है और ये कहती है कि यहाँ पर कारकर्दगी इंतहाई बुरी है और यहीं पर इसकी मकामी सियासत का आगाज होता है। इस वक्त एमक्यूएम वाज़ेह तौर पर 2 धड़ों के अंदर तकसीम नजर आती है, बल्कि 3 धड़ों के अंदर तकसीम नजर आती है। एक एमक्यूएम लंदन है, एक एमक्यूएम पाकिस्तान है और एक एमक्यूएम पाकिस्तान का PSP फैक्टर है। ये तीनों फैक्टर को अगर गौर से अगर आप देखिए तो इन तीनों ने मुश्तरका तौर पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की मकामी सियासत है। मगर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खास तौर पर हामिद मीर आज टीवी के एक प्रोग्राम में बैठते हैं और आज टीवी के प्रोग्राम में बैठकर वो इंकशाफ करते हैं कि दर हकीकत मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस 18वीं तरमीम के खिलाफ है और इसे वफाक के अंदर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये तब्दीली हो जाए और उन्हीं के कहने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है। हैरत अंगेज तौर पर अगर सबको ये बात मालूम है कि अगर 18वीं तरमीम के अंदर कोई और चीजें तब्दील करना मुतवक्के हो तो उसके लिए एमक्यूएम के ग्राउंड की जरूरत नहीं है। जब कभी भी पाकिस्तान की ताकतवर लोग, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत चाहेगी तो वो तरमीम हो जाएगी और जब नहीं चाहेगी तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन पूरे मीडिया के अंदर उसके बाद हामिद मीर ही बैठते हैं जियो टीवी के प्रोग्राम के अंदर, शहजाद साहब के प्रोग्राम के अंदर, और वहां पर भी वो यही बात दोहराते हैं कि जनाब एमक्यूएम जो है वो उस साजिश का हिस्सा बन रही है कि 18वीं तरामीम के अंदर तब्दील की जाए और 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं और 31वीं और 32वीं तरमीम आए। यह हामिद मीर के अल्फाज थे आज टीवी के प्रोग्राम के अंदर। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या फिर ये एक साजिशी नजरियात है? अब तक का माजी का रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखिए तो जब कभी भी पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया या पाकिस्तान की ताकतवर हुकूमतों ने जब ये चाहा कि वो तरामीम करना चाहती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने किसी न किसी तौर पर हैंडल कर लिया और वो तरमीम हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां रेजिस्ट भी नहीं कर सकी और उन्होंने तरमीम कर दी। उसके लिए क्या एमक्यूएम का कांधा इस्तेमाल हो रहा है और एमक्यूएम के तमाम हलके क्या इतने बेवकूफ है कि वो वफाक के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और वो वफाक के लिए कुछ कर भी नहीं रहे? हमारा जाती ख्याल ये है कि दर हकीकत यहाँ की मकामी सियासत को वफाक की सियासत के साथ जोड़ा जा रहा है जबरदस्ती। ऐसे मामलात है नहीं, लेकिन सबको ये पेटेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि एमक्यूएम या मुस्तफा कमाल की ये मूवमेंट या खालिद मकबूल की ये मूवमेंट इस वक्त एक बकौल उनके एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल होगी और यहाँ पर उनको इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह का मामला होगा। हमारा अपना जाती ख्याल ये है कि इस वक्त एमक्यूएम के धड़ों की आपस की चपकलिश और उसके साथ साथ बढ़ने वाले मामलात दर हकीकत इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई मजबूत तहरीक उठाने के काबिल है और ना ही इस वक्त आपस के इख्तलाफात को खत्म कर कर एक नुक्ते पर जमा करने की नोयत रखते हैं। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है और इसके वाज़ेह सबूत यह है कि खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जिस तरीके से मुस्तफा कमाल ने हफ्ते के रोज खालिद मकबूल सिद्दीकी को चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया कि मैं इसे चेयरमैन नहीं मानता, बिल्कुल इसी तरीके से टंडोलाया, टंडोजाम और हैदराबाद के अंदर मीरपुर खास के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह तौर पर कुछ ऐसे इशारे दिए कि जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो इस वक्त मुस्तफा कमाल वाले ग्रुप के साथ शामिल होना नहीं चाहते। उनके अल्फाज बड़े ही गहरे थे लेकिन वाज़ेह तौर पर इशारा था।
उन्होंने कहा कि एमक्यूएम में जो लोग छोड़कर गए वो कूड़ेदान में चले गए और बाद में वही कूड़ेदान आकर एमक्यूएम में आकर मिल गया। उनका वाज़ेह तौर पर यह इशारा जो लोगों ने उसकी तशरीहात की वो एमक्यूएम के पीएसपी ग्रुप की तरफ ही की। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जब वहां पर किसी ने पूछा कि चेयरमैन खालिद मकबूल, तो खालिद मकबूल बहुत ही अल्फाज का गहराई से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन के लिए मेन होना जरूरी है और उसी वक्त चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत में और फिर उनके मुखालफिन के खिलाफ नारे लगना शुरू हुए। इसकी वाज़ेह मिसाल यह थी कि ये इशारा एक बार फिर पीएसपी की तरफ जा रहा है। तो दोनों के इख्तलाफात इस हद तक है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई मुश्तरका तहरीक चलाने की सूरत हाल में मौजूद हरगिज नजर नहीं आते। ऐसी सूरत हाल में यह कहना कि 18वीं तरमीम के लिए कोई मजबूत तहरीक चलेगी, जब कभी भी 18वीं तरमीम के लिए तहरीक चलाना मकसूद होगी तो उसके लिए जरूरी उनसर यह होगा कि इन दोनों ग्रुपों को आपस में बिठाकर फिर एमक्यूएम के अंदर जान डालकर फिर उसे आगे मूव किया जाएगा, जो ताहाल नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ उसी में ही जहां रही सही बात कही, कहा कि जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो एक होने के बाद क्या ये अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम बन जाएगी? वहीं पर एंकर का सवाल ये था, हामिद मीर ने उस वक्त जवाब ये दिया कि नहीं, ये अल्ताफ हुसैन वाला दौर वापस नहीं आ सकता है और ये किसी तौर पर भी एमक्यूएम इतनी मजबूत नहीं हो सकती है कि जनाब वो कोई सूरत हाल पैदा कर सके। तो खुद हामिद मीर ही एक बार साजिशी नजरिया गढ़ते हैं और उसके बाद उस साजिशी नजरिए को वहीं से अपनी बात से रद्द करते हैं कि जब अगर मजबूत एमक्यूएम नहीं हो सकती तो फिर 18वीं तरमीम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक किस तरीके से चल सकती है, ये वो सवालिया निशान है जो वहीं पर रह जाता है। तो दरहकीकत एक साजिशी नजरिया पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स पर मुरतब किया जा रहा है कि जनाब इन सबको एक कर एक तहरीक चलाकर तरामीम करने का मकसूद है और उसकी मकसद है वफाक को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात देना। और इन इख्तियारात के खिलाफ खुद उसी दिन महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद ने वाज़ेह तौर पर अपने जलसे के अंदर कहा कि ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है। तो एमक्यूएम का एक और धड़ा यानी कि जो महाजर कौमी मूवमेंट है वो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत यहीं तक रहती है। आइए आपको एक और बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं और बड़े अहम मामला पे चलते हैं। हाफिज साद रिजवी जो कि करीबन 10 माह से लापता है, अभी तक हाफिज साद रिजवी का मालूम नहीं हो सकता। तहरीक लब्बैक के लोग इस वक्त जो अभी अवामी सतह पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दी हुई है और उस दरख्वास्त की जो आखिरी समाअत हुई थी वो 29 जून को हुई थी और उनकी समाअत की थी जस्टिस उमर गुल साहिबा ने। जस्टिस उमर गुल साहिबा ने जब उनकी समाअत की थी तो उन्होंने 1 महीने की तारीख दे दी थी, यानी कि 27 जुलाई की तारीख दे दी गई थी। आज जो कुछ भी तहरीक लब्बैक की जो छोटी मोटी सलाहियत है वो आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचती है और इस हवाले से पहुंचती है कि जनाब आज वहां पर हाफिज साद रिजवी के केस की समाअत हो सके। लेकिन जैसे ही वो हाफिज साद रिजवी के केस की समाअत के लिए वहां पर पहुंचते तो मालूम होता है कि जस्टिस साहिबा छुट्टियों पर जा चुकी है और फिर उनके पास जितने भी केसेस लगे हुए थे जो इमरजेंसी बुनियाद पर थे वो तमाम के तमाम केसेस जस्टिस अकबर डोगर साहब के पास चले गए। लेकिन हाफिज साद रिजवी का केस अकबर डोगर साहब हैं उनके पास नहीं गया और अकबर डोगर साहब के पास जब वो केस नहीं गया तो वो केस लगा ही नहीं। इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह था कि आज भी हाफिज साद रिजवी के हवाले से कोई केस नहीं लग सका। तो ये बात इशारा ये दे रही है कि जनाब रुक जाइए, अभी हाफिज साद रिजवी के आने में शायद अभी बहुत ज्यादा वक्त है, या फिर अभी पॉलिसी मैटर नहीं है कि हाफिज साद रिजवी इस वक्त किसी जगह पर जेरे गौर है। तो तहरीक लब्बैक के लोगों के लिए 12 रबीउल अव्वल खास तौर पर करीब आ रहा है। कल यहाँ पर निश्चित के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट भी किया गया, लेकिन उस तरीके का इवेंट इस वक्त तहरीक लब्बैक करने की पोजीशन में किसी तौर पर भी नजर नहीं आ रही है। तहरीक लब्बैक पर पाबंदियों का सिलसिला बरकरार रहेगा और बिल्कुल उसी तरीके से मामला उनके लिए कठिन रहेंगे जिस तरीके से साबका 10 मार रहे हैं। इस फैसले की नोयत से जस्टिस साहिबा के किसी वजूहात की बुनियाद पर ना आने से और उनका केस ना लगने की बुनियाद पर यह वाज़ेह इशारा नजर आ रहा है कि इस वक्त तहरीक लब्बैक के लिए वो रास्ते मौजूद नहीं है जो फैसिलिटीज इनको कुछ अरसे पहले तक मौजूद थी या जब तक हाफिज साद रिजवी साहब मंजर आम पर थे उस वक्त तक मौजूद थी। हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी के मुतालिक ताहाल अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका है और
तहरीक लब्बैक भी उसी तरीके से फाल नजर नहीं आ रही है। तहरीक लब्बैक जिस तरीके से ताकत से जोश व खरोश के साथ, जिस तरीके से हाफिज साद रिजवी की मौजूदगी में या खादिम हुसैन रिजवी की मौजूदगी में फाल नजर आ रही थी, उनका तंजीमी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी इस वक्त खुलकर उनकी हिमायत के लिए निकलने के लिए तैयार नजर नहीं आता है। जहां पर बात इमरान खान की या अल्ताफ हुसैन की अगर हो जाए, तो अगर इमरान खान पर पाबंदी है, इमरान खान जेल के अंदर है, फिर भी उनकी जमात किसी न किसी तौर पर एक्टिवली रोल प्ले कर रही है। अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनकी सरगर्मियां नजर आ जाती है, मगर हाफिज साद रिजवी की सरगर्मियां उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। क्या हाफिज साद रिजवी की जमात किसी तरीके से कोई दबाव क्रिएट कर हाफिज साद रिजवी के मामला को आगे की तरफ हल करने की तरफ जा सकती है? तो ताहाल इस जमात की सूरत हाल जीरो नजर आ रही है, क्योंकि ये उस तरीके से फाल और एक्टिव ही नजर नहीं आ रही है। अब आइए एक और बात की तरफ, एक और अगर मजहबी जमात की तरफ जिक्र किया जाए, मौलाना फजल रहमान साहब के हालिया जलसों के बाद जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की मुक़तदरा कुव्वतों, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की थी, उसके बाद से मौलाना फजल रहमान साहब का जहां पर ब्लैकआउट चल रहा है, वहीं पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ तमाम की तमाम सियासी जमातों ने तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ के मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, शहबाज शरीफ के मौलाना फजल रहमान साहब के ताल्लुकात माजी के अंदर बेमिसाल रहे। शहबाज शरीफ पिछले बार वोट्स के लिए और पीडीएम की हुकूमत के लिए उनके घर बार बार चक्कर लगाते थे, खुद नवाज शरीफ भी उनके घर के कई चक्कर लगा चुके हैं, मगर यहाँ वक्त बदलते हुए और गद्दार होते हुए और मुहिब्बे वतन होते हुए देर नहीं लगती। लम्हे भर के अंदर कोई गद्दार हो जाता है और लम्हे भर के अंदर कोई मुहिब्बे वतन हो जाता है। तो इस वक्त भी मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ उसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिसके सरबराह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, जिसको वो बेटी करार दिया करते थे, वो उनके खिलाफ जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसके बाद जिस तरीके से एमक्यूएम ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर मुख्तलिफ और लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उससे वाज़ेह हो गया था कि मौलाना साहब को बैक पर रखा जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता इस सारे मामला की हवा कुछ थमी है, कुछ मामला थमा है। मौलाना साहब पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नजर नहीं आ रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर बदस्तूर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ ट्रेंड सरगर्म है। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ आज सुबह 9:30 बजे मैंने ये देखा कि ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर सब पर मोस्ट ट्रेंड और शुरू के 5 या 6 ट्रेंड जो थे वो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ थे। ये बात भी वाज़ेह तौर पर ये इशारा दे रही है कि मौलाना फजल रहमान और इस वक्त की मौजूदा कायदत जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, उसके दरमियान कहीं ना कहीं इख्तलाफात की बाज़गश वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। अभी इख्तलाफात मौजूदा हुकूमत के ही है या किसी और के, ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर मौलाना फजल रहमान साहब के इस वक्त इख्तलाफात क्यों इस नोयत तक पहुंच चुके हैं। वही पीडीएम के साथ रहना, इमरान खान की हुकूमत का हटाना और अब जब मौलाना का किसी और करवट पर जाना, ये क्या इशारा दे रहा है? मौजूदा हुकूमत को 2.5 साल हो चुके हैं, अब वक्त जाने का शुरू होता है। 2.5 साल इक़्तिदार के इब्तदाई वो साल होते हैं कि जब मुकम्मल एंजॉयमेंट होता है और अगले 2.5 साल के बाद यहाँ पर इक़्तिदार का ज़वाल शुरू होता है और फिर 1 साल के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब इलेक्शन होते हैं या नहीं होते वो एक अलग मामला है, मगर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बदसूर ट्रेंड्स का सिलसिला जारी है और बदसूर नक्ता यूं है कि मौलाना फजल रहमान निशाने पर मौजूद है। मजीद बहुत सारी खबरें हमें देनी थी आपको, लेकिन वक्त की किल्लत है और आप जानते हैं कि वक्त की किल्लत है, हमें जल्दी जल्दी प्रोग्राम को खत्म करना है। अभी के लिए दी गई इजाज़त, अल्लाह के बाद।